Hello students, welcome to all of you in my business studies class. Today in this lecture we will discuss our running chapter and name of the chapter is organizing. The point of today's lecture is delegation of authority. Students, delegation of authority is one of the most important chapters of your syllabus and it is very important for your board examinations also. It is a very interesting chapter. I will explain you every concept, every aspect of this topic and we will understood this topic in very detail. So first of all, we need to understand what is the meaning of delegation of authority and what is the use, why we are going to discuss this topic and what is the use of this topic, delegation of authority, in our business scenario. So I am going to explain you what is the practical utility, what is the practical need of delegation of authority. As we all know that there are three levels of management: top level, middle level and bottom level. The managers who are working on the top level, they have lots of work. They are very busy, they have lots of work and very much responsibility also, but they are unable to perform all their duties in efficient manner. In that case, the manager wants to transfer their responsibilities, their authorities to their subordinates, and this process is always helpful for managers to reduce their workload. This process is known as delegation of authority. In the definition, we can say that in the simple word, delegation refers to downward transfer of authority from superior to subordinate. In any case, when a superior transfer their authority to their subordinate, that is called delegation of authority. But students, authority is very important. When a superior transfer their authority, he must transfer a responsibility also. When a superior will transfer their authority, the responsibility will also transferred by them. But what is the actual condition with responsibility, we will discuss further in this lecture. So first of all, we have to understand once again, delegation refers to downward transfer of authority from superior to subordinate. जब भी किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी सुपीरियर यानी कोई भी बड़ा अधिकारी अपने वर्कलोड को कम करने के लिए, अपने काम को और ज़्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए अपने कुछ कार्यों को अपने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफ़र कर देता है, तो इस प्रोसेस को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहा जाता है. लेकिन इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहली बात है कि सुपीरियर को क्यों ज़रूरत पड़ती है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करने की. उसका आंसर ये है कि एक सुपीरियर यानी एक टॉप लेवल मैनेजर के पास बहुत सारे वर्कलोड्स होते हैं और उस वर्कलोड के साथ काम को परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है. इसलिए उसे ये महसूस होता है कि अगर हम किसी अपने वेल इंटेलिजेंट एक अच्छे सबऑर्डिनेट, हम सभी सबऑर्डिनेट को डेलीगेशन नहीं कर सकते, ऐसा सबऑर्डिनेट जो ज़्यादा समझदार हो, ज़्यादा स्किल्ड हो, ज़्यादा नॉलेजफुल हो, जिसे काम की ज़्यादा जानकारी हो, उसको हम अपनी अथॉरिटी को ट्रांसफ़र करते हैं. एक जो सुपीरियर है वो अपने एक स्किल्ड सबऑर्डिनेट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफ़र करता है, अपनी अथॉरिटी को ट्रांसफ़र करता है. उसे जिस पे विश्वास होता है कि मेरा जो सबऑर्डिनेट है वो मेरे काम को ठीक तरीके से समझता है और उसको आसानी से कर लेगा, उसे ही अपनी अथॉरिटी को ट्रांसफ़र करता है. ये हमें समझने की ज़रूरत है कि अथॉरिटी इज़ नॉट सो इजी थिंग. अगर हम अपनी अथॉरिटी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसका मतलब है कि सारी जिम्मेदारी, वो काम करने का जो पावर है, जो अधिकार है, वो उस सबऑर्डिनेट के पास जा रहा है. तो सबसे पहली बात तो होगी कि एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करता क्यों है. तो अपनी वर्कलोड को कम करने के लिए, काम को एफिशिएंटली कंप्लीट कराने के लिए वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करता है. अब दूसरा प्रश्न ये है कि किस सबऑर्डिनेट को करता है, कि एक स्किल्ड और ट्रस्टफुल सबऑर्डिनेट को सेलेक्ट करता है जिससे वो अपना डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कर सकता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, समझने की बात है और इसको हम बहुत ही सोच समझ के साथ एज ए सुपीरियर हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करते हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसी टॉपिक के अंतर्गत एक नेक्स्ट पॉइंट है, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी. स्टूडेंट्स, एक सुपीरियर जब अपनी अथॉरिटी को ट्रांसफ़र करता है तो उसके साथ ही साथ
रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी भी तय हो जाती है। अथॉरिटी का मतलब होता है कि हम अपनी पावर को ट्रांसफर कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम अपनी जिम्मेदारी यानी जो काम करने की जिम्मेदारी है वो, और अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, यानी जो भी व्यक्ति उस काम को करेगा उस काम के होने में जवाबदेही किसकी होगी, ये मैटर है। इस पॉइंट में हमें यह समझना है कि आफ्टर क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी ऑन सबऑर्डिनेट्स द सुपीरियर ऑल्सो रिमेन अकाउंटेबल। जब भी कोई टॉप लेवल मैनेजर अपने किसी सबऑर्डिनेट को कोई भी अथॉरिटी ट्रांसफर करता है, वो काम परफॉर्म किया जाता है, लेकिन तब भी उस काम की जो जिम्मेदारी होती है वो हमेशा उस सुपीरियर के पास ही होती है। मैं आपको एक उदाहरण के रूप में समझाना चाहूँगा। सपोज करिए एक मल्टीनेशनल कंपनी है और उसका सीईओ है। उस सीईओ के द्वारा अपने एक सबऑर्डिनेट को अपनी अथॉरिटी को ट्रांसफ़र कर दिया गया। वो जो सबऑर्डिनेट है उसने अपने सीईओ यानी अपने बॉस के बिहाफ पे कोई भी फाइल को प्रोसीड कर दिया, कोई भी डिसीजन ले लिया, और उस डिसीजन का जो भी इफेक्ट होगा उस इफेक्ट के लिए वो सबऑर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वो सीईओ ही रिस्पॉन्सिबल होगा। आइए एक और उदाहरण पे बात करते हैं, ये ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा। सपोज करिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो जितनी भी फाइल्स पर सिग्नेचर करते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सारी फाइल्स को पढ़ते ही हैं। कई बार हमें ये जानकारी मिलती है, देख तो नहीं सकते हम क्योंकि हम प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को ऐसे डायरेक्टली नहीं देख सकते, प्रोटोकॉल्स होते हैं, लेकिन हमें जानकारी मिलती है कि प्रधानमंत्री एक साथ तमाम फाइल्स को साइन करते हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सारी फाइल्स को पढ़े हुए हैं खुद। ऐसे चांसेस भी आते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर अपने कुछ सबऑर्डिनेट्स रखे हुए हैं जिनको उन्होंने अपने कुछ अथॉरिटीज़ को ट्रांसफ़र कर रखा है, और वो सबऑर्डिनेट उस फाइल को पढ़ता है और आ करके प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ करता है कि सर इस फाइल में ये चीज़ लिखा हुआ है, इसमें अगर आप साइन करेंगे तो इसका ये अलग इफेक्ट हो सकता है, नहीं साइन करेंगे तो अलग इफेक्ट हो सकता है, और इस बात के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर उस पर साइन कर देते हैं। तो जब भी प्राइम मिनिस्टर किसी फाइल पे साइन करेंगे, वो फाइल पढ़े हों या ना पढ़े हों, पूरी जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर की ही होती है। उसी तरीके से किसी भी ऑफिस में जब बॉस किसी भी अपने पावर को शिफ्ट करता है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बॉस की होती है, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी बॉस की होती है, चाहे वो काम कोई भी करता हो। इसलिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में हमें समझना जरूरी है कि कोई भी सुपीरियर अपने पावर को डेलीगेट तो कर सकता है लेकिन उसकी अकाउंटेबिलिटी से नहीं बच सकता है। सारी अकाउंटेबिलिटी उस सुपीरियर की, उस बॉस की ही होती है। नेक्स्ट जो यहाँ चीज लिखी हुई है, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन में 3 मेन एलिमेंट्स हैं जो आपके बोर्ड पे आप देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड वन इज अथॉरिटी एंड थर्ड वन इज अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि काम की जो जिम्मेदारी, अथॉरिटी का मतलब होता है काम का पावर, और अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है काम की जवाबदेही। हम ट्रांसफर करते हैं अथॉरिटी को, जब अथॉरिटी ट्रांसफर होती है तो उसके साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी भी होती है। इसीलिए अकाउंटेबिलिटी होने की वजह से ही एक बॉस अपने उसी सुपीरियर को डेलीगेट करता है अपनी अथॉरिटी को, जिसके बारे में उसे पूरी जानकारी होती है कि ये जो हमारा सबऑर्डिनेट है ये पूरी तरीके से स्किल्ड है, समझदार है, जो मेरी पावर्स का, मेरी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। इसलिए हम उस पर्सन को सबऑर्डिनेट करते हैं, उस पर्सन को डेलीगेट करते हैं अपनी अथॉरिटी को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट topic, this is a very important process, so a manager always thought about that who is that trustful person to whom I can delegate my authority. This is a very important topic also. I hope you all understood this topic very well, and read this topic in your books also. If you have any problem you can watch this lecture again and again. Thank you so much.